Good morning, students. I am Atul Rana, and I will be continuing with the second lecture. Second chapter for class 11th chemistry. Okay, we are already done with this first chapter, that is some basic concepts of chemistry, and now we are in the second chapter of chemistry for class 11th. Class 11th chemistry. Class 11th chemistry. Structure of atom. Class 11th chemistry is there and topic is structure of atom. Structure of atom. Structure of atom. Okay. Structure of atom topic is there, and in this this is the first video. This is the video 1 on the lesson 2 of chemistry class 11. Okay, clear? So we will know about the structure of atom. Clear? देखो आज you know that in the atom there is a nucleus. Okay, nucleus is situated at the center. In the nucleus, protons plus neutrons are there. Protons are positively charged, neutrons are neutral, and negatively charged electrons are revolving around the nucleus in a circular path. Okay, these things you know, but these things have not been found in a single day. Okay, many scientists conducted many experiments to know about what is a proton, what is the charge of proton, what is the mass of proton, what is electron, mass of electron, charge of electron, what are neutrons, what is the place where this electron, protons and neutrons are situated, what is the nucleus, okay, what is the position of nucleus, okay. Then several gave, after knowing about the nucleus, electrons and protons, many scientists gave the structure of atom, that nucleus are there, nucleus is there, electrons are there, protons are there, neutrons are there. Ultimately a lot of scientists tried their best, okay, to give us knowledge about the structure of atom, position of nucleus, electrons, neutrons, protons, etc. After their discovery, then ultimately we come to the model which we are following now is quantum mechanical model of atom. Quantum mechanics model of atom. Okay, quantum mechanical model of atom, which you have not studied in the junior classes. In the junior classes, you have studied up to Bohr's model of atom. Up to Bohr's model of atom. Now there is an advancement to the Bohr's model of atom also. Bohr model क्या बोलता है? Nucleus बीच में है. They are moving in a well-defined orbit. This is Bohr model. You must have studied in this ninth class. Okay. So today we will start with the structure of atom. And सबसे पहले this Dalton theory came in 1808. उसने बोला कि atom is the smallest particle of this universe which cannot be further divided. But now you know that atom can be further divided. It can be further divided into subatomic particles. Subatomic particles, electrons, protons and neutrons. Okay, these particles are called as fundamental particles. Electrons, protons and neutrons are called as fundamental particles. We will study these three particles in detail, that how they were discovered, how the charge and mass of them were calculated, because they are very small species, so how the mass and charge are calculated. So we will start with all this. Okay, so first we will move on to the discovery of electron. Our first topic will be discovery of electron and how electron was discovered. Okay, so our first topic for this chapter is discovery of electron. Discovery of electron. Okay, discovery of electron. Okay, so if somebody asks you the question, many scientists were associated in discovering electron, giving this finding out the charge and this mass of the electron. Okay, from Michael Faraday to William Crookes. Okay, then but still the credit of the discovery of electron goes to J.J. Thomson. J.J. Thomson. Okay. Whenever if you have a question that who discovered electron, then answer will be J.J. Thomson, because he gave all the queries about the electron after discovering. Okay. Now before the discovery of electron, an experiment was performed that is known as cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment. This experiment was performed. Cathode ray tube experiment. This experiment was performed, cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment was performed. This was performed by Crookes, William Crookes. This experiment was performed by William Crookes in 1879.
Okay, this experiment ultimately lead to the discovery of negatively charged particle in the atom, that is electron. Okay, so we will study the cathode ray tube experiment. If you will understand cathode ray tube experiment, then automatically electron was discovered in this. Coincidentally, electron was discovered in this experiment. So our first topic, discovery of electron. For this we will study cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment. Okay, so we will study cathode ray tube experiment. Okay, so I am erasing this. So first will be study cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment. Cathode ray tube experiment. Okay, cathode ray tube experiment. First, apparatus. That what was the apparatus used for the experiment? What was the apparatus used for the experiment? Okay, so William Crookes took a discharge tube. Apparatus was used, discharge tube. Discharge tube. A discharge tube was used. What is a discharge tube? A discharge tube is a simple tube made of glass. A discharge tube is a simple tube made up of glass. Okay, which is sealed at both the ends. Discharge tube is a simple glass tube which is sealed at both the ends. Okay, it is around 60 centimeter in length. It is around 60 centimeter in length. Okay, so he used a discharge tube. I am drawing a diagram here. He used discharge tube. This is discharge tube. It is simple tube made up of glass sealed at both the ends. Okay, discharge tube was used. Second, cathode and anode. Okay, one cathode and one anode was used. Okay, cathode and anode are nothing but they are the strips made up of metal. The metal strip, okay, which is attached to the negative terminal of the battery, that is called as cathode, and which is attached to the positive terminal of the battery, that is called as anode. Okay, so it was cathode and one anode. Anode was perforated. Anode was perforated. Perforated का मतलब बीच बीच में छेद थे, उसके बीच बीच में स्पेस था, कंटिन्यू नहीं थी. Anode was perforated. Okay, बीच बीच में छेद थे. This is perforated anode. This is negatively charged cathode. This is positively charged anode. Okay, so ये है. So definitely it will be carried to negative terminal of the battery and it will be joined to the electrode which is joined to the positive terminal of the battery, that is called as anode, and it is called as cathode. So this is discharge tube. This is discharge tube. This is cathode. This is anode. Okay, and this is discharge tube. This is discharge tube. This is discharge tube. Okay, so this is the apparatus. Okay, now अगर डिस्चार्ज ट्यूब हम लेते तो हमें वैक्यूम चाहिए अंदर. हमें क्या चाहिए? वैक्यूम. वैक्यूम मतलब कुछ, अगर ट्यूब लेते उसके अंदर हवा होती, हवा के मॉलिक्यूल्स होते. ओके, सो सपोज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रे मैं तुम्हें बता देता हूँ, कैथोड रे इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. whenever a charged particle accelerates, whenever a charged particle accelerates, जब भी कोई पार्टिकल है, एक होता पार्टिकल, एक होती वेव. पार्टिकल समझते हो? मैं पार्टिकल हूं, तुम पार्टिकल हो, कोई भी जिसका मास हो पार्टिकल, और एक वेव होती है. ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, बहुत स्पीड से निकलता है, तो उसके इर्द गिर्द एक वेव बन जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इन द दिस लेक्चर ओनली. whenever a charged particle, for example electron is a charged particle, whenever a charged particle accelerates, it creates a wave around itself. तो अगर यहाँ पे मान लो डिस्चार्ज के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अभी स्टार्ट ही होता ट्रैवलिंग करना, इलेक्ट्रॉन अभी ट्रैवल करना स्टार्ट ही होता कि गैस के मॉलिक्यूल उसको टकरा देते और उसको एक्सेलरेट नहीं होने देते. ठीक है, बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होते, तो इलेक्ट्रॉन जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट अप्लाई की थी. क्यों अप्लाई की थी? कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, सो जब ज्यादा एनर्जी दी जाती है, then those extra electrons can be released. Whenever there is energy, electrons gain energy and they move. So इतनी वोल्टेज हमने दी है
ताकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट ऑफ दिस कैथोड और वो इतनी स्पीड से मूव करें, ठीक है, वो बिल्कुल स्पीड से मूव करें, इसलिए एनर्जी ज्यादा दी गई है। जितनी एनर्जी देंगे, कुछ एनर्जी तो वो मेटल सरफेस से ऊपर निकलने में लगा लेंगे, ये मेटल है इसका सरफेस छोड़ना है, और कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा होगी वो उनकी स्पीड में जाएगी। सो अ हाई वोल्टेज ऑफ एनर्जी वाज गिवन 10,000 वोल्ट, ओके, सो हाई वोल्टेज वाज गिवन, हाई वोल्टेज ऑफ एनर्जी वाज गिवन, हाई वोल्टेज ऑफ एनर्जी वाज गिवन टू देम, ओके, 10,000 वोल्ट ऑफ एनर्जी वाज गिवन टू देम, क्लियर, ताकि इस वोल्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, और स्पीड से जाए। पर अगर बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा अपने को, वैक्यूम पंप लगाना पड़ा। वैक्यूम पंप का मतलब जो बाहर की हवा को बाहर खींच लेता है, ठीक है, तो बाहर मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स था, तो वैक्यूम पंप ने 100 में से मान लो 90 मॉलिक्यूल्स खींच लिए, ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स रह गए, देयर आर ओनली 10 मॉलिक्यूल्स आफ्टर अप्लाइंग वैक्यूम, 100 मॉलिक्यूल से वैक्यूम पंप ने 90 खींच लिए, अब अंदर कितने रह गए, 10 ही रह गए, तो अब इलेक्ट्रॉन के टकराने की संभावना कम होगी ना, सो वैक्यूम पंप pulls out the molecules or gases and create vacuum here so that electrons can move fluently, okay, ये आ गया वैक्यूम पंप, इसको नाम दे दिया मैंने, दिस इज नेमिंग कर दो इसकी वैक्यूम पंप, ओके। हाई वोल्टेज यदि वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया गया, ठीक है, वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया गया, ओके, और इसमें दिस बिहाइंड द एनोड अब फोस्फोरेसेंट मटेरियल, कोटिंग ऑफ फोस्फोरेसेंट मटेरियल वाज डन बिहाइंड द एनोड। मैं बताता हूं फोस्फोरेसेंट मटेरियल क्या था, लिख लो, बिहाइंड एनोड कोटिंग ऑफ फोस्फोरेसेंट मटेरियल, फोस्फोरेसेंट मटेरियल बिहाइंड एनोड, ओके। सो देखो, इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हमें कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बिहाइंड एनोड अ फोस्फोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड लिया था इसमें ZnS, दैट इज अ फोस्फोरेसेंट मटेरियल। फोस्फोरेसेंट मटेरियल या फोस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस जिसपे इफ एनीथिंग विल स्ट्राइक, अगर किसी मटेरियल फोस्फोरेसेंट मटेरियल या फोस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ग्लो if some particles strike them. If some particles strike phosphorescent material, they glow, or the particles which glow when a particle strikes them, that are called as phosphorescent particles. If a particle glows, if the material glows, if some particle strikes them, that are called as phosphorescent materials. Okay, this is a natural property. This is a natural property of a material. So zinc sulfide is one of those materials जिसपे जब भी कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो ग्लो करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, हमें पता कैसे लगेगा इसकी मूवमेंट है, तो अगर वहां पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दिस इज परफोरेटेड, दैट वाई इट इज टेकन एज परफोरेटेड, इसमें से कुछ पार्टिकल्स गुजर जाएंगे और वो पीछे स्क्रीन पे लगेंगे, तो स्क्रीन विल स्टार्ट ग्लोइंग, सो वी विल कम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ओके। तो ये अब पीछे कोटिंग कर दी किसकी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, पीछे किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, दिस मच ऑफ apparatus was required, okay, write it down। अब एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ओके, ऑन कर दिया, कैथोड ने छोड़ना शुरू कर दिया, प्रेशर कितना किया गया, वैक्यूम पंप ने प्रेशर कितना कम कर दिया था, 10-2 एटमॉस्फेयर, नॉर्मली कितना था 1 एटमॉस्फेयर, तो ये 0.001 एटमॉस्फेयर, प्रेशर वाज वेरी लेस सो दैट द मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी टेकन आउट, ओके। तब जब इसने प्रेशर 10-2 एटमॉस्फेयर कर दिया, ओके, तो क्या हुआ, वोल्टेज आ गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू किए, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले, ठीक है, तो पीछे ये वाली स्क्रीन ग्लो करना शुरू कर दी, पीछे ये वाली स्क्रीन क्या होगी, ग्लो करना शुरू कर दी। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो इससे भी निकल रहे हैं, पर ये कैथोड क्या थी, ये पूरी मान लो, पूरी यहाँ पे थी, कैथोड पूरा मान लो, पूरा था, ठीक है, एनोड पूरा मान लो, ओके। तो यहाँ से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकले, दिस एनोड वाज परफोरेटेड, सो दे पास थ्रू दिस स्लिट्स, इन छेदों से निकल गए और पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करना शुरू कर दिया, बटन दबाते वोल्टेज होने से ही इन्होंने इसको हिट करना शुरू कर दिया और ये स्क्रीन ग्लो करना शुरू कर दी, ओके। जैसे स्क्रीन ग्लो करना शुरू कर दी, ओके, तो इसमें क्या किया हमने, देखो ये apparatus you have written, ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस apparatus एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा हुआ क्या था, ठीक है, बट हैपन,
Okay, so what happened during the experiment? What happened during the experiment? So during the experiment, write it down with me. During the experiment, when voltage was applied, voltage वाला switch on कर दिया. When voltage was applied, during the experiment, when voltage was applied, during the experiment, when voltage was applied, okay, then the zinc sulfide जो phosphorescent material है, zinc sulfide is a phosphorescent material. When the zinc sulfide screen started glowing, then the zinc sulfide screen started glowing. Okay, इससे हमें क्या पता लगा? कंक्लूजन, इससे हमें पता क्या लगा कि पार्टिकल तो हमें दिख नहीं रहे थे, पार्टिकल तो हमें क्या थे, दिख नहीं रहे थे. तो इसका हमें पता लगा दैट, इससे हमें क्या कंक्लूड किया, दैट पार्टिकल तो दिख नहीं रहे थे. पहले उन्होंने उसको वेव माना. क्या माना उसको? वेव माना कि कोई वेव है जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है और उससे जाके टकरा रही है, स्ट्राइकिंग विद द फोस्फोरेसेंट मटेरियल. सो व्हाट दे हैव कंक्लूडेड दैट after applying voltage, okay, cathode is negatively charged, a negatively charged wave from कैथोड से निकल रही है, किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एनोड की तरफ. आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, a negatively charged wave from cathode started moving. इस तरफ लिख रहा हूं मैं, started moving, I am writing here, starting moving, a negatively charged, इसके बाद वहां लिख रहा हूं, a negatively charged wave from cathode starting moving towards positively charged anode. Okay, ठीक है. Since this wave या this ray, wave बोलो या ray बोलो, since this ray originated from cathode, so this ray was termed as cathode ray. So this ray was termed as cathode ray. This ray was termed as cathode ray. Got it? So इस तरीके से this was a cathode ray experiment which produced which gave us an idea about the cathode rays, that these are negatively charged rays which are moving from cathode towards anode. Okay, but now the discovery of electron is still pending. Discovery of electron still pending है. इलेक्ट्रॉन क्या है अभी तक अपने को पता नहीं लगा. What is this? An electron. Okay, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए कैथोड रे पता लग गया कि नेगेटिवली चार्ज रे मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज कैथोड रे. ओके, अब इसको जानने के लिए कैथोड रे से हमें इसका पता लग जाएगा, क्या नाम इसका, व्हाट डू से, इलेक्ट्रॉन का पता लग जाएगा. इसके लिए तो मैं छोड़ा था एक दो चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी. ठीक है, देखो जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, चार्ज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, दीज आर चार्ज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. व्हेन दे विल एक्सेलरेट, जब ये पूरी स्पीड से क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो इनके इर्द गिर्द क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द. इलेक्ट्रिक फील्ड, वन मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, इट क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. मैग्नेटिक वैसे दिखा दें, इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. जब वो बहुत स्पीड से करता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती हैं. दीज फील्ड्स मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर चल रही हैं. दीज फील्ड्स मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, और इन फील्ड की वजह से एक वेव बन जाती है. वेव बन गई ना ये, देखो दिस वेव इज गोइंग ऑन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अंदर पार्टिकल चला हुआ है और उसके बाहर उसकी वजह से क्या एक वेव चल रही है. तो जब भी कोई वेव बनती है, इसका मतलब अंदर कोई पार्टिकल है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है. विदाउट पार्टिकल ए वेव कैन नॉट बी फॉर्म. जैसे इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी लाइट की वेव है, लाइट आती है तो लाइट के भी पार्टिकल्स हैं. पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो अंदर मूव कर रहा होता है उसको बोलते हैं फोटोन. फोटोन इतनी स्पीड से मूव करता है दैट यू गेट लाइट फ्रॉम सनलाइट. ओके, तो कभी भी वेव बनेगी कोई,
या कोई रे बनेगी, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है, उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है। ओके, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मतलब मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर मोटा मोटा बात समझ लो कि जब भी कोई वेव बन रही है इसका मतलब उसके अंदर कोई पार्टिकल है, विदाउट पार्टिकल अ वेव कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, सो दिस कैथोड रे और वेव, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, इज नेगेटिवली चार्ज वेव। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से कैथोड रे बनी है। तो सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, some negatively charged particle could be there, would be there, could क्या होगा ही, would be there, would be there। ओके, सो कैथोड रे के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। ये बाद में जे थॉमसन ने पता लगाया था, इसका चार्ज भी और ये भी विलियम क्रूक्स ने यहाँ तक छोड़ दिया था कैथोड रे तक। So the credit of discovery of electron goes to J.J. Thomson. So this was all cathode ray tube experiment. Anode ray tube experiment we have which lead to the discovery of proton, that is also similar to this. But still, in the next lecture we will study about the properties of cathode rays. We will study about the properties of cathode rays in our next lecture. Clear? So good luck. Okay. So that is my for the 11th class. This is my second video lecture. Okay, for the structure of atom we are discussing chapter 2, structure of atom. In the class 11th chemistry, in the class 11th chemistry we are discussing structure of atom, structure of atom, that is chapter 2, that is chapter 2, and this is the video lecture second, this is the video lecture second for the chapter 2. Clear? So in the first video lecture for this chapter second, I told you how electrons were discovered through the cathode ray tube experiment. Okay, cathode ray tube experiment was done by William Crookes in 1879, and he said that a wave from negatively charged cathode moves towards the positively charged anode, and this wave was named as cathode wave. Okay, every wave is associated with a particle, and the particle associated with the and the particle associated with cathode wave is a negatively charged particle, because the wave is also negatively charged, and that negatively charged particle was named as electron. Okay, later we will study, in the upcoming video lectures we will study about the charge and this mass of an electron, how it was calculated. Okay, but in this video I will tell you about the properties of cathode rays. Cathode rays, understand, negative wave. Okay, negative ray will start from the cathode, negatively charged ray, and move towards the anode. Now properties, what are its properties? Okay, so we will tell about the today's heading is properties of cathode ray. Properties of cathode ray. Okay, properties of cathode ray, yeah, cathode ray. Okay, you will study the properties of cathode ray. Experimentally I will prove this also. Okay, so first property is they travel in straight line. They travel in straight line. They travel in straight line. Okay, cathode rays travel in straight line, सीधा निकलती हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाती. They travel in straight line. इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? The apparatus, you know, there was a, in the apparatus there was a discharge tube. Okay, cathode was there, this perforated anode was there, negatively charged, positively charged, negatively, okay, positively charged. This voltage of 10,000 volts. अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है, you will come to know about the apparatus. I have explained this apparatus in detail in our video lecture 1. Okay, 10,000 volts. There was a vacuum pump. There was a vacuum pump also. Clear? And what was that? Okay, so cathode rays, first property of cathode ray, that they travel in a straight line. That they travel in a straight line. Okay, it was proved.
How it was proved? Proof. Now the proof. How it proved? ठीक है, it was proved by placing a spin wheel. Spin wheel मतलब जो रोटेट करता है. By placing a spin wheel in the way of cathode ray. By placing a spin wheel. Spin wheel मतलब जो घूमता नहीं है, तुम घुमाते थे बचपन में, स्पिन व्हील होता है छोटा सा. By placing a spin wheel in the way of cathode, उन्होंने स्पिन व्हील लिया, तुम तो जो मर्जी ले लो, स्पिन व्हील लिया था उसने, क्रूक्स ने. By placing a spin wheel in the way of cathode ray, its shadow appears. Its shadow appears. Its shadow appears. Its shadow appears. इन्होंने क्या किया, इस बीच में एक स्पिन व्हील लगा दिया. स्पिन व्हील मीन होता नहीं विंड व्हील जैसा, ठीक है. इन्होंने एक स्पिन व्हील लगा दिया, बीच में उन्होंने एक स्पिन व्हील लगा दिया. ओके, तो जब कैथोड रे इससे टकराई, तो जब भी पता तुम्हें कोई दो, कैथोड रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड से ओरिजिनेट हुई, ऐसे टकराई, बीच में क्या आ गया होगा, स्पिन व्हील आ गया होगा. दीज वर मूविंग कैथोड रेज. सो जैसे ये स्पिन व्हील से टकराई तो पीछे स्पिन व्हील की शैडो आ गई. पीछे स्पिन व्हील की क्या आ गई, उसकी शैडो आ गई. पीछे स्पिन व्हील की शैडो आ गई. सो ओनली दोज रेज कैन गिव द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन में चलती है वही शैडो देगी. अगर स्ट्रेट लाइन में ना चलती, ऐसे निकल जाती, तो मुझसे टकराती ना, या स्पिन व्हील से टकरा ऐसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, तो आइदर दे विल नॉट गिव द फुल शैडो, और कुछ कुछ हिस्से की शैडो देंगे, शैडो बनेगी नहीं अच्छे से. सो ओनली दोज वेव्स या दोज रेज व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट कैन गिव शैडो. सो कैथोड रे आल्सो गिव द शैडो of the spin wheel which was placed in between the discharge tube. So this proved that it gave the shadow of the spin wheel. It proved that cathode rays move in a travel in a straight line. This was the first property of cathode ray, that they move in a straight line. Okay, got it? Okay. Now second property. First property, they travel in a straight line. Write it down. Straight line proof मैंने दे दिया. Okay. अब second property of cathode ray. We are discussing the properties of cathode ray. We are discussing the properties of the cathode ray. So second property is cathode ray is made up of material, is made up of particles, is made up of particles. ठीक है. अब तो तुम्हें पता है कैथोड रे किस पार्टिकल से बनी होती है. कैथोड रे is made up of electron. Electron is a particle inside the moving cathode ray. So उस टाइम पे जब ये नया एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बाद में डिस्कस किया, उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि कैथोड के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई पार्टिकल है. ओके, सो और उसका प्रूफ कैसे होगा. अब देखो जैसे लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है, लाइट निकल जाती है, मतलब लाइट को छोड़ दो, कोई पार्टिकल है, अगर मान लो ये रोटेटिंग व्हील है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल इस साइड से स्ट्राइक करेगा तो रोटेटिंग व्हील इस साइड घूमेगा, कोई पार्टिकल इस साइड से स्टार्ट करेगा तो इस साइड से घूमेगा. अगर पार्टिकल लगातार रोटेटिंग व्हील से स्ट्राइक होंगे तो वैसे से घूमना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. दिस रोटेटिंग व्हील, अगर कैथोड रे के अंदर पार्टिकल, रे से तो घूमेगा नहीं, रे तो सीधा निकल जाएगी. अगर कोई वेव है तो वो तो सीधी निकल जाएगी. अगर वेव के अंदर पार्टिकल है तो पार्टिकल इस व्हील से टकराएंगे, जो व्हील यहाँ पे मेंशन है, व्हील से टकराएंगे और व्हील क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. जोर से टकराते रहेंगे, व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा. सो ये प्रूव करने के लिए कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उन्होंने क्या किया, सेम स्पिन व्हील लिया, कैथोड रे फेंकी, कैथोड रे फेंकते क्या हुआ, कैथोड रे फेंकते क्या हुआ, इस स्पिन व्हील ने क्या किया, इस स्पिन व्हील ने रोटेट करना शुरू कर दिया. इस स्पिन व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब है कि ये जो रे जा रही है, ये जो वेव जा रही है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, ओके, और उसको रोटेट कर रहे हैं. सो सेकंड प्रॉपर्टी दैट कैथोड रे, सेकंड प्रॉपर्टी दैट कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स by proved by the same experiment by taking spin wheel in the center. So when we put when we this when cathode rays this was made to fell on the, when cathode rays fell on the spin wheel, it started rotating. It started rotating, it means the cathode rays are definitely made of particles. Wave कभी मूवमेंट नहीं करा सकती, पार्टिकल टकराएगा तभी क्या करेगा, कोई चीज हिलेगी. ओके, सो दिस वाज अगेन प्रूफ. नाउ वी नो दैट दिस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस वाज द सेकंड थिंग which was done in this way. Okay, this was the second thing which was done in this way.
ओके, अगेन फॉर द नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू द सेम डायग्राम। तो उसको मैंने मिटा दिया, इसको यहाँ से फिर से बना लो, ठीक है, यहाँ से फिर से बना लो, ठीक है। अब दो हो गया इसका, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। अब इसका थर्ड डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, हैव हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है अगर ज्यादा देर तक तुम कैथोड रे किसी के ऊपर फोकस करोगे, व्हेन यू दिस कैथोड रे आर मेड टू फॉल ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ longer time, then that object will get heated up, that object will get heated up. So this is fourth property, that cathode ray, third property, cathode rays have heating effect. यहाँ पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, this is anode, this is zinc screen, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उस पे लगातार उन्होंने काफी समय तक कैथोड रे को स्ट्राइक किया। So after some time they saw that this object got heated up, कैथोड रे के continuous contact में आने की वजह से this object got heated up. It means that cathode rays have heating effect, means they can heat up something. Okay, this was the third property. Heating effect, made up of particles, travel in a straight line. These are the three properties. Okay, अगली property है इसकी कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैथोड रे जा रही थी, ओके, मान लो कैथोड रे है, ठीक है, कैथोड रे जा रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब कैथोड रेज आर देमसेल्फ नेगेटिवली चार्ज, दीज आर कैथोड रेज, दीज आर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जा रही थी, बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। सो नाउ यू टेल दैट टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन द कैथोड रे विल बेंड, cathode ray will bend towards which terminal? Definitely negatively charged rays, and these are negatively charged rays originated from cathode, so they will bend towards positive terminal. So this shows that cathode rays bend towards the cathode rays bend, वैसे तो स्ट्रेट चलती हैं पर कोई फील्ड लगा दी, फोर्स लगा दी, cathode rays bend towards the positive terminal of the towards the positive terminal of the electric field, to the positive terminal of the electric field. It shows that cathode rays are themselves negatively charged, it shows that cathode rays are themselves negatively charged. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो नेगेटिव की तरफ जाती, अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, then it means that cathode rays are themselves negatively charged. So this was the fourth property. Fourth property तो पता थी, बस इसको प्रूव करना पड़ना ना, so this was proved also, ठीक है, this was proved also that fourth is cathode rays, write it down with me, cathode rays move towards the positive terminal, towards the positive, this is positive, move towards the positive terminal of electric field, it shows that they are themselves negatively charged, इसका क्या मतलब हुआ कि वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन करेगी, इट मींस दे आर देमसेल्फ नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, दोनों स्पिन व्हील से प्रूव हो गए। थर्ड, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, प्रूव, ओके। फोर्थ, they are negatively charged because they move towards the positive terminal of the electric field, okay। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है that we will do, that next property which we are going to discuss is the fifth property is cathode rays produce X-rays, ठीक है। कैथोड रेज क्या करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं, कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है।
अब कर ही सकती हैं कैसे? एक्सरे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस कैसे होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बड़ी ज्यादा स्पीड से, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को ये हिट करेंगे तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इनको अंदर नहीं जाने देगा, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इनको पेनिट्रेट ना करने दे। इलेक्ट्रॉन आर कमिंग विद फुल स्पीड, फुल एनर्जी, सो these दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ सब्सटेंस, यहाँ पे टकराएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? डी एक्सेलरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी एक्सेलरेट। इनकी इतनी ज्यादा स्पीड से टकराते का स्पीड कम हो जाएगी, सो ये स्लो हो जाएंगे। बट जब ये स्पीड में थे तब इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, अभी डी एक्सेलरेट हो गए, स्लो हो गए हैं, तो इनकी एनर्जी खत्म हो गई है। वो जो एनर्जी थी वो लॉस हो जाती है, दैट एनर्जी इज लॉस्ट, दैट एनर्जी इज लॉस्ट। जब टकराते हैं इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो लूज कर देंगे, और उस एनर्जी को लूज करते क्या हो जाएंगे? ये स्लो हो जाएंगे, ये बिल्कुल बैठ जाएंगे। दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, दैट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो मूवमेंट करने के टाइम पे थी, दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। गॉट इट? सो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब किसी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन बीम को हम किसी ऑब्जेक्ट से डी एक्सेलरेट करें, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी दे लूज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। This that's why this X-rays are produced. So you know X-rays, कैथोड रेज किससे बनी? इलेक्ट्रॉन से बनी है। जब कैथोड रे जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से जा रहे हैं, तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कराया तो उसमें से एक्सरे निकली, डेफिनेटली निकलेगी, क्योंकि आज हमको पता है एक्सरे बनती इलेक्ट्रॉन को स्लो कर देती है। तो कैथोड रे में है क्या? इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रे को रोकोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनकी स्पीड की वजह से थी, दैट विल गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। सो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज। गेटिंग द पॉइंट? So now I will be discussing the next property, that is the last property. ऐसा property बहुत है, main property यही है, sixth property आ गई, that cathode rays are independent of the gas taken in the discharge tube, and type of electrode used, ओके। अब उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट में पहले हाइड्रोजन गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल रहने दिए, फिर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की, कॉपर की, ग्रेफाइट की, ठीक है, जिंक की, सबकी इस्तेमाल करके देख ली, पर कैथोड रे से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है गैस जो मर्जी ले लो अंदर, इलेक्ट्रोड जिस मर्जी की ले लो, कैथोड जिस मर्जी की ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि कैथोड रे मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, इलेक्ट्रॉन्स से जिंक निकाले, ठीक है, चाहे प्लेटिनम निकाले, चाहे प्लेटिनम निकाले, चाहे कॉपर निकाले, जिस मर्जी की इलेक्ट्रोड है, of whatever metal this electrode is made up of, जिस मर्जी मेटल इलेक्ट्रॉन निकाले, अपने को इलेक्ट्रॉन निकल गए, so all the metals can generate electrons, so no effect कि सिर्फ जिंक वाले ही इलेक्ट्रॉन, only zinc metal can electrode made up of zinc can release electrons, ठीक है, electrode made of copper can also release electrons, so no use of this electrode of whatever metal you use, you are going to get the same cathode ray, okay, because cathode is electrons, moving electrons is cathode ray। सेकंड पॉइंट, गैस का कोई काम ही नहीं है, गैस को तो हमें निकालना है ताकि वो बीच में इलेक्ट्रॉन को रोक ना ले, चाहे नाइट्रोजन गैस उसको भी वैक्यूएट करना है, हाइड्रोजन गैस उसको भी वैक्यूएट करना है, जो मर्जी गैस भर लो, वैक्यूम पंप क्या करेगा उसको? वैक्यूम पंप क्या करेगा उसको? इवैक्यूएट कर देगा, ओके। तो गैस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, व्हील से पता लग गया, पार्टिकल है उसमें, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हील से पता लग गया। थर्ड, this move towards the positive terminal of the electric field means they are negatively charged, okay, produce x-rays. Why? Because electrons when deaccelerated, it is made up of electrons when deaccelerated automatically will produce this x-rays। fourth, heating effect है, fifth heating effect है, हीट करती हैं, डेफिनेटली हीट करती हैं, किसी को भी हीट करेगी, उसको हीट करेगी। Why? बिकॉज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, दे विल हीट अप। सेकंड, जो मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो, जो मर्जी गैस ले लो, कैथोड रे वैसे ही चलेगी। व्हाई? आई हैव टोल्ड यू, सो दीस वर द सिक्स प्रॉपर्टीज, सिक्स मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे, ओके। इन द नेक्स्ट lecture I will be discussing this anode ray tube experiment, means discovery of this proton, then we will find the charges on electron and proton।